Hello guys, how are you all? Welcome to iLead and welcome to iFeel Fitness. Myself Nilanjan Sharma, and today we'll be taking up a online fitness session with all of you. This is iFeel Fitness Gym. This is a college gym. Also, we entertain people from outside members as well. So uh, what is iFeel Fitness all about, or what is fitness all about? Let me give you a brief introduction about the fitness and the fitness lifestyle actually. See, fitness is a way of life. Okay, whatever you do, like you walk, you run, you step up, you climb up stairs. Okay, you lie down, you sit down. Whatever you do, any activity, these are all functional movements of the body. Okay, this all relates to your daily activities, and this is all fitness is all about. Okay, so whatever you are doing is a form of fitness. Okay, suppose you do suppose jumping, you do fast running. Suppose you have to run fast, you have to catch up a bus, anything. Okay, anything in your daily life is a part of fitness. So what we do in I feel fitness is we enhance your performance on a daily basis. We enhance your performance. That's what we do. So the gym provides you with a module of exercise programs with our expert trainers to guide you. Okay, and we will guide you through the program modules, through charts, and whatever your individualized goal are. Okay, goals properly. Whatever you want to do, like suppose somebody has a goal of to play football, to play nice football. Somebody has a goal to get fitter. Somebody has a goal to lose weight management particularly. Somebody has a goal just to look good. Somebody has a goal to body build, to build their body, to build muscles. Okay. Somebody has a goal to do some more other activities, some more sports. So in all these kinds of activities, I feel fitness helps you to basically, excel. So whatever the fitness activities, we guide you to individualized programs, and you will be able to excel in your daily life and also in whatever sports or activities you do. Okay. Now, without taking much time, I'll just show you the gym around. Okay, you people can just have a look at the gym around, and then we'll continue with the sessions. Okay. So this is one of our rooms. This is the CrossFit and the kickboxing room. Okay, so here you can see the bars are there, monkey bars, punch bags. Okay, this is a grass room and all these things. Okay, and here I'll take you up to the gym. I hope all of you can see. You see the gym. So this is the gym. So we have all the cardio equipments. Okay, the cardio fitness equipments in the cardio section, treadmill. We have cross trainers, cycles, and here we have the strength training sessions. Okay, all the strength machines. And this side we have the dumbbells, the free weights. Okay, so all the cable crossovers, Smith machine, everything. Okay, so this is the look of the overall gym. Okay, this side we have the changing room also as well, where we have the changing shower facilities and the steam sauna. See, steam is there. Okay, steam and shower facilities there. Changing room facility, locker facilities are here in this way. It's both separate for the gents and ladies. Okay, let's come back to our floor again. Let me brief you about, now you have seen the gym, right? So let me tell you what is the memberships and everything all about, a brief history of the memberships and all, the overall summary actually. So, I think this gym started around 10 years back. I think. Yeah, 10 years back, more than 10 years it has been. And we have been training many, students and other members, outside locals who are coming up. We are hosting cricket and football sessions also as well every Fridays. Every Fridays we are hosting these sessions and all for you to play around. We understand that fitness is not only about gymming; it is a overall activity, so that members can enjoy other activities also as well. We have certain more activities which are attached to the membership as well. So let me tell you the membership timings, the gym timings rather. So it's 6:30 a.m. in the morning we open up and till 9 p.m. in the evening.
and that's from Monday to Saturday. Sunday we are closed. Okay, so this is the timing of the gym, and we have always trainers on the floor. We have gents trainer, we have female trainers on the floor. Okay, we will guide you to your exercise programs. Now, once you join the gym, we have a certain membership program for the students. This is a very specialized program for the students. So basically, our general membership program is completely different, but for the students, we have a subsidized program. So we have monthlies at 2,500. That is 1,500 plus one-time registration. 1,000 rupees is the one-time registration. So that implies for any of the other categories also as well. So monthly is at 2,500 first time, and then renewal is 1,500. Then you go to the quarterly, which is 3 months. That is 3,500 plus one time of registration, 1,500. So 4,500 initially, and then onwards you can go to 3,500 for your renewals. For the half yearly, it is 5,500 plus one time registration. Half yearly means 6 months. And then for the annual, it is 10,000 all inclusive. So that's the rate for our students. Okay. And so basically when you join, the trainer will guide you from a basic chart point of view, from a basic exercise point of view, and then slowly take up the chart. Once they understand your body type and all, they will take you up with the chart, and then the chart will be continued 3 months after. The chart will be changed once you're regular with the gym. So now coming to fitness, okay, what all other activities do we have? So that's the gym membership. Along with that, we have 2 days of kickboxing and 2 days of CrossFit training, complementary with your annual membership program. People who are taking annual membership program can join up with 2 days of kickboxing in a month and 2 days of CrossFit in a month, complementary. Okay. Apart from that, we have other steam sauna and all those facilities attached to your membership. And now let me tell you about kickboxing and CrossFit also as well. What is kickboxing and what is CrossFit? These two programs are, you can take up a paid program also as well. So what is kickboxing? Kickboxing is a martial arts. Okay, you know all something about kickboxing, right? It's a joint version of karate and boxing and Muay Thai, right? So I teach kickboxing particularly. I'm the instructor for kickboxing, and we do training over here Monday and Wednesday, 5 p.m. to 6 p.m. So it's an overall activity which helps you for muscular endurance, body fitness, self-defense, okay, overall body conditioning, everything together. So that also you can do 2 days, which will be 1,500 rupees for 12 classes kickboxing. And for annual membership people, they can get 2 classes a month complimentary. For CrossFit, it is again overall activity which comes up with a lot of other range of equipments where you work out your overall body and develop your functional strength, endurance, everything together. So we have CrossFit classes also, 2 classes complimentary for annual memberships, and other than that, if you want to take 12 classes of CrossFit paid, then it will be 2,500. Okay, so now I have introduced you briefly about the gym and its programs, right? So we have also on Fridays we have cricket and football. So you can 1 week I think cricket and 1 week is football, like that. So you people can join up and enjoy the cricket and football facilities also as well once your membership is enrolled with us. Okay. So now just before I go to the exercise session, just let me tell you whatever this is the time, we are into a very difficult time phase of our lives. We all know, right? We are going through this virus phase right now, the COVID-19 phase, and also we are into we have been our lifestyle has been stopped by lockdowns and a lot of things. Anyways, a lot of people are right now studying. Everybody, I hope, is studying, having their online classes and all, whatever they are doing from the online. You are all doing online classes. Classroom is going to start in some time. Okay, but I will always tell you, I'll always advise you, maintain a fitness program at home. That's very important to keep yourself fit, to keep your mind refreshed, fit, and to that will help you out in your daily activity, whatever you are studying, whatever you're doing. If you do fitness, half an hour of fitness activity also will help you out every day in your life, and you will see the benefits within a month's time. That I can assure you. Okay, now whatever will be the fitness and all, let's not talk much, and I'm Samit, please come. So he is our head trainer, Samit Malik. Hello. Hello everyone. Hello. So he will guide you for the exercise program right now on your daily fitness routine, whatever you can do from home.
Okay, so we will guide you. Over to Samit right now. Hello, this is Samir. I'm your instructor today, and also head instructor I feel फिटनेस. आज का टॉपिक जो है आपका वो एट होम फिटनेस जो आज का टॉपिक है. तो ये फिटनेस क्या होता है? व्हाट इज फिटनेस? फिटनेस इज द डे टू डे एक्टिविटी. लाइक आप डे टू डे एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है आपको वो. लाइक आप एज ए स्पोर्ट्स खेलते हो, या इधर फुटबॉल, इधर क्रिकेट, इधर मार्शल आर्ट, इधर आप जिम जाते हो. ओके, तो ये होता है फिटनेस. तो लाइक आपको कोई भी एक्टिविटी करना होता है, जैसे लाइक आपका बॉडी में कुछ भी करेंगे तो जस्ट बॉडी वॉक करना चाहिए. लाइक आप वॉक भी करते हो तो वो भी आपका फिटनेस एक्टिविटी हो जाता है. तो फिटनेस ये होता है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जिम जाएंगे तो आपको फिटनेस होगा. बट हाँ, जिम जाने से क्या होता है, पर्टिकुलर वो आपका गोल्स रहता है. लाइक आप फिटनेस वो जगह में जाने के लिए जाते हो कि फिटनेस करना है आपको. एनी हाउ देन हम लोग का जो आज सेशन है, तो जैसे ये ड्यू टू कोरोना आप सब कोई बाहर नहीं जा सकते हो, या कोई जिम ज्वाइन नहीं कर सकते हो अभी, या आप लोग कॉलेज अभी आप लोग का ऑफ है, तो आप सब घर पे हो. तो इसीलिए हम लोग ये सेशन रेडी किया कि आप लोग घर पे रहते क्या कर सकते हो घर पे. तो घर पे भी हम लोग फिटनेस कर सकते हैं कि जैसे एट होम फिटनेस में क्या क्या होता है. तो लाइक घर पे तो किसी के पास इक्विपमेंट नहीं रहता है, तो सब कोई विदाउट इक्विपमेंट एक्सरसाइज करेंगे. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि विदाउट इक्विपमेंट क्या क्या एक्सरसाइज हो सकता है. तो फर्स्ट हम लोग एज एज ए हम लोग घर पे क्या क्या कर सकते हैं. तो लाइक हम लोग पहले जो करेंगे तो वो है आपका वार्म अप. ओके, तो फर्स्ट जो है आपका वार्म अप में आप क्या क्या कर सकते हो. फर्स्ट जो वार्म अप है तो आप लोग फॉलो करो मुझे. तो वार्म अप में फर्स्ट आप नॉर्मली आप अपना पोजीशन में खड़े हो जाएंगे. ठीक है, अब अपना नेक्स्ट को अप डाउन करो, इससे आपका नेक्स्ट स्ट्रेच होगा प्रॉपर. देन इसको साइड टू साइड ट्विस्ट करो. ओके, नेक्स्ट इसके साथ जैसे वार्म में क्या क्या आता है. वार्म में आता है जैसे लाइक मोबिलिटी. बिफोर एक्सरसाइज हम लोगों को हमेशा मोबिलिटी करना पड़ता है. ये मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी में सबका जो बॉडी में जितना सारा जॉइंट्स होता है, तो जॉइंट्स को पहले आपको बिफोर एक्सरसाइज आपको फ्री करना होता है. ये फ्री क्यों करेंगे? बिकॉज आप जॉइंट्स को फ्री नहीं करेंगे तो आपका कोई भी मूवमेंट ठीक से नहीं कर पाओगे. तो कोई भी पोस्चर लाइक आपका कोई भी स्क्वाट करो या पुशअप्स करो या बाइसेप्स ट्राइसेप्स व्हाटएवर, जो भी आपका बॉडी का पार्ट्स, तो आपको करने के लिए आपको पहले जॉइंट्स को फ्री करना होता है. तो ये वार्म अप के सेशन में क्या करते हैं, हम फर्स्ट हम लोग मोबिलिटी को फ्री करते हैं, जॉइंट्स को फ्री करते हैं. तो उसके लिए भी हम लोग को जैसे लाइक मोबिलिटी फर्स्ट क्या कर सकते हैं, तो आपको आप आर्म्स को मूव करो लाइक ऐसे, इसको साइड टू साइड कर सकते हो. इससे क्या होगा, आपका शोल्डर मोबिलिटी अच्छा होगा आपका. इसको रोल कर सकते हो, इसको रिवर्स करो, फिर अपना स्पाइन को ट्विस्ट कर सकते हो. ये सब आप फ्री हैंड एक्सरसाइज है, ये आप एनी टाइम एनी हार आप कर सकते हो लाइक विदाउट इक्विपमेंट. तो ये आप घर पे भी कर सकते हो, गार्डन में भी कर सकते हो, आपका टेरेस पे कर सकते हो. जितना सारा जॉइंट्स को है आपको जॉइंट्स को फ्री करना है आपको पहले. ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपसे, तो वार्म अप सेशन फिलहाल इतना ही रखो. ओके, नाउ हम लोग अभी हो गया आपका वार्म अप. नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग 3 सेशन करेंगे. एक लोअर बॉडी करेंगे, एक अपर बॉडी करेंगे, और देन हम लोग आगे एक कोर फिटनेस करेंगे जो हम लोग घर पे कर सकते हैं. तो लोअर बॉडी में हम लोग घर पे क्या क्या कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्क्वाट कर सकते हैं. आप लोग स्क्वाट तो सुना होगा कि स्क्वाट क्या क्या कैसे होता है या नहीं, तो हम आपको वो दिखाएंगे अभी. जैसे आप स्क्वाट करेंगे तो आप जब स्टैंड में करेंगे, आपका जो 2 लेग्स है, लेग्स आपका 16 डिस्टेंस में रखेंगे आप. ओके, तो आपका आर्म्स को आगे फॉरवर्ड करेंगे, ये आपको बैलेंस में हेल्प करेंगे, और आपको पेल्विक जो है इसको फील करेंगे बैक साइड. तो आप धीरे धीरे आप स्लोली आप नीचे जाओ. इससे क्या होगा, आपका प्रॉपर स्क्वाट पोस्चर में आप लेग्स में होल्ड. देन आप करेंगे तो आपको ऊपर जाके थाई मसल्स एंड ग्लूट्स मसल्स को होल्ड रखेंगे. ओके, अगेन हम शो यू. ओके, सो कंटिन्यू करो 10 टाइम्स. ओके, ये करने से क्या होता है, आपका जो लेग्स का मसल्स है, हम लोग को लेग्स का हम लोग ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करेंगे. जैसे लाइक इसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, इसका हैमस्ट्रिंग बोलते हैं.
तो हम लोग जैसे हम लोग बात करते हैं कि लेग मसल्स है, ऐसी बात करेंगे हम लोग। तो ये लेग मसल्स वर्क करता है, बट स्क्वाट्स में बहुत सारा बेनिफिट होता है। जैसे लाइक पहले होता है आपका लेग एक्सरसाइज, लेग मसल्स टोन होता है आपका, आपका कोर मसल्स वर्क करेंगे एंड आपका कार्डियोवास्कुलर इसमें अच्छा डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप जितना स्क्वाट करेंगे, ड्यूरेशन जितना करेंगे, तो आपको कार्डियोवास्कुलर भी उतना इंप्रूव होगा आपका। तो हर एक सेट करेंगे जब, जैसे फर्स्ट एक सेट स्क्वाट किया, तो हर एक सेट में आपको 1 मिनट ब्रेक होगा, वन आइदर 1.5 मिनट मैक्सिमम। ओके, ये बिगिनर एक्सरसाइज है, ये घर पे ट्राई कर सकते हो। हम और एक बार शो करेंगे अगेन। गुड, ये हो गया आपका स्क्वाट। तो स्क्वाट करने से आपको पता चल रहा है क्या क्या हो सकता है। स्क्वाट से आपका क्वाड्रिसेप्स होगा, आपका हैमस्ट्रिंग मसल वर्क करेंगे, आपका ग्लूट्स मसल वर्क करेंगे, आपका कोर मसल्स वर्क करेंगे। ओके, आपका कार्डियोवास्कुलर वर्क करेंगे। तो स्क्वाट्स में बहुत सारा बेनिफिट है। ये एज ए बिगिनर आप घर पे कोई भी जगह आप कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। और एक बात है कि स्क्वाट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे हम लोग जब स्क्वाट करते हैं तो हम लोग स्क्वाट करने के टाइम हम लोग को नीज आगे हमेशा फॉरवर्ड हो जाता है। तो हम लोग क्या करना है कि आपको फोकस करना है कि आपका नी ड्यूरिंग स्क्वाट आपका टो क्रॉस नहीं होना चाहिए। लाइक हम जब स्क्वाट कर रहे हैं तो मैक्सिमम ग्लूट्स को आउट करेंगे, तो ये नीज आपका टो क्रॉस नहीं हुआ, ये लाइन आपको अलाइनमेंट रख करना है। लेकिन ऐसे आप नहीं करेंगे, तो ऐसे करने से क्या होगा, आपका नी पेन होगा। तो आपको फॉरवर्ड क्या करना है, आपको हमेशा आपको नी को आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए एनी हाउ। तो आपको ग्लूट्स मसल्स को मैक्सिमम आउट करो, स्लोली ऊपर रखिए, ग्लूट्स कॉन्ट्रैक्ट करो, थाई मसल कॉन्ट्रैक्ट करो। अगेन सुनो, ये आप ये था उसका स्क्वाट। तो ये आप घर पे 3 सेट कर सकते हो, 15 ईच सेट। ये हो गया आपका क्वाड्रिसेप मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड ग्लूट्स मसल्स। ओके, तो और क्या कर सकते हैं हम लोग आगे, हम लोग और एक सेकंड एक्सरसाइज जो फ्री हैंड, जैसे कोई इक्विपमेंट नहीं लगेगा, जैसे आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लोग लंजेस। वो लंजेस क्या पोस्चर होता है वो हम शो करेंगे अभी। जैसे आप शोल्डर जिस तरह से खड़ा हो जाएगा, देन आप एक लेग पीछे फॉरवर्ड करो मैक्सिमम, और पीछे का लेग आपका हिट अप रहेगा। अब स्लोली 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 नीचे जाओ, देन ऊपर आके ग्लोट स्ट्राइक करो, अगेन स्लो, अगेन अप। अब इसमें हाथ रख सकते हो उसमें आपका। गुड, इसमें आपको फोकस करेंगे आपका नी टो क्रॉस नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग। अब जब भी स्क्वाट मतलब लंजेस में जाएंगे तो आपका नी टो क्रॉस नहीं होगा। तो मैक्सिमम क्या करते हैं गलती, तो ऐसे हो जाता है हम लोग का लंजेस। तो ये होता है लंजेस, अब फॉलो करो। हमारा लेग चेंज कर रहा है। ओके, गुड। बेसिकली ये आपका नी आगे नहीं जाएगा, एग्जैक्टली, राइट, आपको नी अंदर रहेगा। ये नीज को आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि ड्यूरिंग आपका लंजेस जो नी आपको टो क्रॉस नहीं होना चाहिए। ओके, ये था आपका लंजेस। तो ये लंजेस से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। लंजेस से बेसिकली आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स, क्वाड्स मसल्स, आपका ग्लूट्स मसल्स, ये आपको इंप्रूव करेंगे। एंड इसमें आपको बहुत अच्छा बैलेंसिंग प्रॉब्लम जो होता है, कोई जिम जाएगा हो पहले तो उसको पता होगा कि ये लंजेस बहुत बैलेंस एक्सरसाइज है एंड लेग के लिए बहुत अच्छा सेटिंग एक्सरसाइज है, और लेग के लिए टोन एक्सरसाइज अच्छा है। और अभी पहले मैं बताया कि हर एक एक्सरसाइज में 1 मिनट ब्रेक होना चाहिए। ओके, ये और एक्सरसाइज हम शो करेंगे आपको। नाउ रेडी, गुड। ये था हम लोगों को लेग एक्सरसाइज। लेग्स में हम लोग क्या क्या किया अभी तक, क्वाड मसल एक्सरसाइज किया, पहले स्क्वाट किया, देन उसके बाद हम लोग लंजेस एक्सरसाइज किया। इसके बाद हम लोग और एक्सरसाइज करेंगे जो हम लोग हैमस्ट्रिंग वॉक करेंगे, ग्लूट्स वॉक करेंगे, उसको बोलते हैं ब्रिज। तो हम अभी शो करेंगे आपको। ओके, गुड। लेग्स दोनों आपको स्लो डिस्टेंस में रखेंगे, ठीक है, पास में रखो, और मैक्सिमम आपका फर्स्ट को ऊपर रखो, इधर ग्लूट्स टाइट करो, हैमस्ट्रिंग टाइट, जस्ट 1 सेकंड होल्ड, स्लोली नीचे जाओ, अगेन अप,
स्लो नीचे जाओ। इसमें क्या करेंगे, आपका ग्लूट्स अच्छा वर्क होगा, आपका लोअर बैक अच्छा वर्क करेंगे, आपका हैमस्ट्रिंग वर्क करेंगे। वेरी गुड। ये था आपका हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज। तो हम लोग घर पे क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सारा सब फ्री हैंड एक्सरसाइज। जैसे आपका लोअर बॉडी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कवर अप हो गया। एज ए बिगिनर आप लोग सब बिगिनर हो या बेसिक एक्सरसाइज को बोल सकते हो, तो ये 3 एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया आपका स्क्वाट, सेकंड हो गया आपका लंजेस, थर्ड हो गया आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स। अभी नेक्स्ट करेंगे हम लोग कफ मसल्स। तो कफ मसल्स कैसे वर्क करेंगे वो भी अपन शो कर रहे हैं। तो आप फ्लोर में नॉर्मल जो खड़ा है, तो आप स्टैंडिंग इसको काफ रेज कर सकते हो ऐसे फ्लोर में। ये एकदम बेसिक्स है। इसके बाद और एक से शो करेंगे आपको। जैसे अब एक आइडल आपके घर का कोई वॉल होगा, तो वॉल को सपोर्ट करके हम अभी शो कर रहे हैं। ओके, तो आप ऐसे वॉल को सपोर्ट करेंगे। अब आपका इसको कोशिश करो फ्लोर में टच करने की। ये और एक वेरिएशन था। तो कप का हम 2 वेरिएशन दिखाए आपको। जैसे एक स्टैंडिंग कप कर सकते हो और एक आप वॉल में सपोर्ट करके कवरेज कर सकते हो। तो ये आज का था लोअर बॉडी पार्ट। जैसे आप घर पे क्या क्या कर सकते हो, तो फिर एज ए बेसिक एट होम अभी भी स्क्वाट कर सकते हो, लंजेस कर सकते हो, आप हैमस्ट्रिंग कर सकते हो ब्रिज के लिए। और नंबर 4 हम लोग काफ मसल्स के लिए कवरेज कर सकते हैं। तो ये सारा था आपका ओनली लोअर बॉडी एक्सरसाइज। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अपर बॉडी। अपर बॉडी के लिए हम लोग को इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपर बॉडी के लिए ज्यादा एक्सरसाइज हम लोग को नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट जैसे घर पे नहीं रहता है। तो पहले एज ए बेसिक्स आप क्या कर सकते हैं, तो अपर बॉडी के लिए आपको बेस्ट एक्सरसाइज सबसे अच्छा है जो पुशअप्स, जो सबको ही पता है, सबको ही करना चाहते हैं या वो करेंगे अभी। तो अभी हम देखेंगे वो पुशअप्स कैसे करते हैं। आपका कोर मसल एंड बॉडी स्ट्रेट रखेंगे। आप धीरे धीरे स्लो नीचे जाओ एंड आप करो। ओके, स्लो नीचे जाओ एंड आप गुड, स्लो एंड आप। ओके, तो पुशअप्स एक ऐसा एक्सरसाइज है, ये बहुत हार्ड भी है और जिसको आता है तो बहुत इजी भी है। बट जिसको बहुत हार्ड लगता है तो वो कैसे करेंगे पुशअप, तो उसका भी ऑप्शन है हम लोग के पास। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग का जो जॉइंट है जितना सारा, तो जॉइंट को हम कट कर सकते हैं। तो जॉइंट कट करने से क्या होगा, बॉडी का बैलेंस कम हो जाएगा। देन हम लोग पुशअप ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट ट्राई करेंगे कि जो लोगों को बहुत हार्ड लगता है पुशअप्स करने में, तो वो कैसे कर सकते हैं कि पुशअप आगे, वो भी हम देखेंगे अभी। ये था आपका नॉर्मल पुशअप्स। ओके, और जिसको पुशअप्स नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, नी को ड्रॉप करेंगे फर्स्ट। उसके बाद कोर मसल्स स्ट्रेट करेंगे, देन आप सेम पुशअप्स कराओ। इससे क्या होता है, आपका जॉइंट एक कट हो गया, आपका बैलेंस कम हो गया, आपका बॉडी का लोड कम हो गया। फिर आप पुशअप्स कर सकते हो। या अगर किसी को फुल पुशअप्स करने में प्रॉब्लम है तो वो पर्सन भी कर सकता है, लाइक ऐसे। ओके, ये था आपका पुशअप्स। तो अपर बॉडी के लिए ज्यादा वेरिएशन हम दिखा नहीं सकते फ्री हैंड, क्योंकि सबसे टफ एक्सरसाइज होता है फ्री हैंड एक्सरसाइज, बिकॉज ये आपका बॉडी वेट है। तो बॉडी वेट से क्या होता है, बॉडी वेट आप माइनस नहीं कर सकते हो, तो बॉडी वेट जो है उसको लेके करना पड़ता है। तो वेट ट्रेनिंग बहुत इजी होता है, तो इसलिए सब बॉडी पार्ट के लिए हम लोग अपर बॉडी में एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है मेरे पास घर पे कोई दीवार का पकड़ने का जगह होगा तो हम चीन अप कर सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, वो बहुत हार्ड एक्सरसाइज है। उसके लिए आपको जिम ज्वाइन करना होता है आगे, या अभी बाकी से इसको कवर करने के लिए। तो फिलहाल आप घर पे ट्राई करो अपर बॉडी के लिए सिर्फ पुशअप्स। बट पुशअप्स का बहुत सारा वेरिएशन होता है, तो वेरिएशन कर सकते हो जितना सारा, तो शॉर्ट ग्रिप, वाइड ग्रिप। बट अभी बिगिनर के लिए एक्सरसाइज दिखा रहे हैं, तो फिर ये बेसिक एक्सरसाइज है, फिलहाल ये स्टार्ट करो। तो आपका हो गया लोअर बॉडी एक्सरसाइज, आपका हो गया अपर बॉडी एक्सरसाइज। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कोर ट्रेनिंग। ये कोर ट्रेनिंग क्या होता है, कोर ट्रेनिंग हम लोग का जो बॉडी का मिड सेक्शन है, ये मिड सेक्शन को हम लोग कोर मसल्स बोलते हैं। तो ये कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है। एक आप जिम जाते हो या आप फील्ड में जाते हो एक्सरसाइज करने या कुछ भी करो, लेकिन आपको कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये कोर आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा आप उतना फिट हो, या प्रूव कर सकते हो कि हम बहुत फिट हैं। या आप कोई भी काम करने के लाइक आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपको कोर के सहारे करना पड़ता है। आप 1 घंटा खड़ा भी रहेंगे तो आपको कोर स्ट्रेंथ चाहिए।
तो आपको कोर स्ट्रेंथ होने से आपको पूरा एनर्जेटिक बॉडी रहेगा, आपका फिटनेस बॉडी अच्छा होगा इसमें। तो कोर के लिए हम लोग क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी फ्री हैंड जो विदाउट इक्विपमेंट हम लोग कर सकते हैं, तो वो अभी आपको शो करेंगे। तो हम लोग बेसिक एक्सरसाइज दिखाएंगे, बहुत इजी एक्सरसाइज, जैसे लाइक बर्पीस। आप लोग बहुत कोई नाम सुना होगा कि बर्पीस जंप होता है कुछ एक्सरसाइज जिसमें आपको कोर वर्क करता है एंड फुल बॉडी से जो वर्क होता है, उसमें सारा जॉइंट यूज होता है इसमें। तो उसमें आपका कार्डियो मसल भी अच्छा वर्क होता है, जिसमें आपका स्टैमिना इंक्रीज होता है। तो अभी हम शो करेंगे आपको बर्पीस जंप फर्स्ट एक्सरसाइज। जस्ट जंप करो, नीचे हाथ रख के, लेग्स बैकवर्ड करके, फिर जंप एंड जंप। हम 5 एक्सरसाइज दिखा रहे हैं आपको। गुड। ये था आपका बर्पीज जंप। इट्स वेरी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। आप लोग घर पे 5 to 10 ट्राई कर सकते हो। जो 10 नहीं होता है वो 5 करो। इसमें क्या होगा, सारा जॉइंट जितना सारा है सब जॉइंट यूज होगा आपका। आपका कोर मसल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आगे। ये आप 3 सेट कर सकते हो 10-10 करके, या 10 नहीं होता है तो 5 करके करो। इज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर आपका कार्डियो मसल्स, फॉर आपका कोर मसल्स एंड आपका फुल बॉडी एक्सरसाइज। तो ये हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर कोर ट्रेनिंग। तो इसके बाद ही बहुत सारा एक्सरसाइज है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है स्क्वाट कम स्टेम इंजन। तो स्टेम इंजन क्या होता है, स्क्वाट क्या होता है? स्क्वाट आपको भी पता हो गया पहले कि हम स्क्वाट दिखाया। तो क्या है उसको कॉम्बो एक्सरसाइज बोलते हैं उसको। तो स्क्वाट कम स्टेम इंजन दिखाएंगे आपको, तो वो आप शो करेंगे। हम साइड से शो कर रहे हैं, हाथ एयर के पास रखो, एक स्क्वाट करो, देन आप उसके बाद स्टेम इंजन। राइट, हम फेस चेंज कर रहे हैं। आप एक स्क्वाट करो, आप करो एल्बो टू नी टच करो। आपका जो एल्बो है ये बॉडी के साथ ट्विस्ट होगा, किसके पास, आपका नी के पास। तो नी नीचे से क्रॉस करके आप लेके आओ, देन फिर चेंज कर सकते हो। अभी हम 5 कर रहे हैं। वेरी हाई इंटेंसिटी। आपको पता चल रहा है कि मेरा ब्रीथ कितना अप हो रहा है, कि हम बर्पीज किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी हम लोग स्क्वाट कम स्टेम इंजन किया, इसमें क्या स्क्वाट भी इंक्लूड है, आपका स्टेम इंजन भी हो रहा है। तो और हाई इंटेंसिटी हो रहा है, जितना भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस बेसिक है, ये आप कर सकते हो, जिनको स्क्वाट पता है इसलिए हम कॉम्बो दिया थोड़ा। तो ये भी आप 5 to 10 कर सकते हो। तो ये बैक टू बैक करेंगे। लाइक आपको पहले बर्पीज किया 10, देन आप स्क्वाट कम स्टेम इंजन करेंगे। ये हो गए 2 एक्सरसाइज। हम लोग 5 एक्सरसाइज शेयर करेंगे आपके साथ। अभी 5 से बैक टू बैक करेंगे। तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, माउंटेन क्लाइंबर आप कर सकते हो, ये आप सुना होगा, अब नहीं भी सुना होगा हम शो करेंगे आपको कि थर्ड एक्सरसाइज माउंटेन क्लाइंबिंग, वो क्या करता है, क्या वर्क करता है, अभी हम डिटेल्स बताएंगे आपको। पहले आप पुशअप पोस्चर में चले जाएंगे। फिर देखिए आपका ये आर्म्स छोटा अलाइनमेंट रहेगा, आपको बॉडी स्ट्रेट। आप एक एक लेग्स को एयर में आपको आगे फॉरवर्ड करके फिर बैक करो, फिर फॉरवर्ड करो, फिर बैक करो। बट ये फॉरवर्ड करने का रीजन क्या है, तो आप जब फॉरवर्ड कर रहे हो तो आपको लोअर मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स को हिट करना होगा। आपको कैसे हिट करना होगा, ये लो पैर का जो प्रेशर है, प्रेशर से हिट करना है। हम देखेंगे, स्पीड कर रहे हैं हम थोड़ा। ये था आपका माउंटेन क्लाइंबिंग। इसमें क्या होता है, कोर मसल्स वर्क हो रहे हैं, आपका लोअर एब्डोमिनल फैट जो होता है वो रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं हम लोगों को। ये हो गया आपको थर्ड एक्सरसाइज कोर एक्सरसाइज में। तो देन तो नंबर 1 हो गया बर्पीज, नंबर 2 हो गया स्क्वाट कम स्टेम इंजन, नंबर 3 हो गया माउंटेन क्लाइंबिंग, एंड नंबर 4 एक्सरसाइज हम क्या कर सकते हैं। नंबर 4 एक्सरसाइज वेरी इजी है, इसका नाम है जंपिंग जैक। ओके, जंपिंग जैक कैसे करेंगे ये आपको पता होगा बहुत सारे को। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसको मिनिमम 10 to 15 आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें आपको बहुत थैंक यू। इसके अब क्या होता है, इसमें आपका ब्रीथ बहुत अच्छा ऊपर हाई होता है। तो हम लोग को जो कार्डियो एक्सरसाइज होता है, तो जो कार्डियो मसल्स, जो हार्ट मसल्स हम लोग को आप रखना पड़ता है, नहीं तो आपको फैट बर्न नहीं कर पाओगे। ये बहुत सारा डिटेल्स है, आपको आगे आस्ते आस्ते पता चलेगा। तो ये हो गया हमको नंबर 4 एक्सरसाइज। नंबर 5 एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज, बहुत इजी एक्सरसाइज, बहुत कॉमन एक्सरसाइज, सब कुछ सुना होगा, प्लैंक। प्लैंक वो तो हम हर जगह कोई फिटनेस इवेंट में जाओ वो प्लैंक कंपटीशन होता है कि प्लैंक करके दिखाओ कितना ड्यूरेशन कर सकते हो।
कोर मसल्स का बेसिक एक्सरसाइज, कोर के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अभी हम प्लैंक शो करेंगे। आई थिंक सब कोई सुना होगा प्लैंक एक्सरसाइज, जो फिटनेस में जा रहा होगा। प्लैंक भी करना क्या होता है, आप प्लैंक को कैसे इंटेंसिटी करोगे? प्लैंक की इंटेंसिटी करने के लिए आपको ग्लूट्स मसल्स टाइट करना होगा, थाइस मसल टाइट करना होगा, आपको कोर मसल टाइट करना होगा, आपको शोल्डर मसल टाइट करना होगा। ये हो गया आपका बेसिक प्लैंक। All tight, ear tight, Yes. ear tight, abs tight, everything. Stomach, glutes, upper body, shoulder, all tight. One line. इसको आप इंटेंसिटी और बना सकते हो कैसे? लाइक हम वन लेग आप कर सकते हैं, अब वन लेग आप कर सकते हो तो आपको प्लैंक और इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। अब लेग ऑल्टरनेट चेंज करेंगे हम, फिर इसके साथ आप वन लेग आप रख सकते हो, सॉरी वन हैंड, इसको चेंज कर सकते हो। यस, तो ये था आपका नंबर 5 एक्सरसाइज, ये था प्लैंक। तो प्लैंक्स वेरी हाई इंटेंसिटी, ये 5 एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो नंबर 1 एक्सरसाइज क्या हो गया आपका? बर्पीज जंप। तो बर्पीज जंप 10 करो। नंबर 2 एक्सरसाइज स्क्वाट कम स्टीम इंजन। नंबर 3 एक्सरसाइज माउंटेन क्लाइंबिंग, वो भी 10 to 15 कर सकते हो। नंबर 4 एक्सरसाइज जंपिंग जैक किया। एंड नंबर 5 एक्सरसाइज प्लैंक। तो प्लैंक एटलीस्ट आप 20 to 30 सेकंड करेंगे, क्योंकि इतना सारा एक्सरसाइज कर रहे हो आप लोग, बिगिनर हो, आप लोग ट्राई करेंगे घर पे, बट इतना ही बोलेंगे आपको कि आप फिटनेस में ज्वाइन रहो, कि फिटनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी बॉडी, सबके लिए आपको फिटनेस रखना है आपको बॉडी के अंदर। आप कभी जगह जाओ, कभी कुछ करो, तो बॉडी आपका एनर्जेटिक रहेगा, आपका बॉडी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका आज जो सेशन हम डिस्कस करने वाला था, तो हो गया लेग, लोअर बॉडी, अपर बॉडी हम किया कंप्लीट, देन आपको कोर एक्सरसाइज कंप्लीट किया हम लोग। तो इसके बाद हम लोग क्या होता है, कूल डाउन। तो सबसे पहले क्या किया था हम लोग, वार्म अप। वार्म अप में आप लोग मोबिलिटी करेंगे, मसल को थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे। देन लास्ट में क्या करेंगे, जो अभी से इतना सारा किया है हम लोग, तो उसमें क्या था, उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो गया, तो इसको कूल डाउन करना है। तो कूल डाउन कैसे करेंगे, तो आपको इसके बदले आपको स्ट्रेचिंग करना होगा, तो हर मसल्स को स्ट्रेच करना होगा। तो स्ट्रेच करने से क्या आस्ते आस्ते आपका ब्लड नॉर्मल हो जाएगा, आपको कूल डाउन हो जाएगा। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर एक्सरसाइज वार्म अप, आफ्टर एक्सरसाइज कूल डाउन। तो अभी आपको शो करेंगे कूल डाउन। कूल डाउन में स्ट्रेचिंग में क्या क्या आता है, बेसिक स्ट्रेचिंग। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप एक मैट डाउन करेंगे, उसके ऊपर आप लेग स्ट्रेट करेंगे। तो देन आपका टारगेट है, आपका टो में टच करने की कोशिश करेंगे। सबका टो टच नहीं होता है, अप्लाई करेंगे आप एंकल, अगर एंकल लेवल इतना तक टच करो, और टच करके आपको हेड को मैक्सिमम डाउन करो जितना जा सकते हो। स्ट्रेचिंग ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी एक दिन में डेवलप नहीं कर सकते हो, तो इसको आपको टाइम लगता है, तो जितना जल्दी हो सकता है। सबका बॉडी सेम टाइम नहीं होता है, किसी का बॉडी बहुत टाइट होता है, किसी का बॉडी बहुत लूज होता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट प्रैक्टिस करने से आपका एवरीथिंग पॉसिबल होगा, कि आप प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको डेवलप होगा आपका फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी का। तो अभी आप ट्राई करेंगे कि टो टच करके अपना हाथ से, तो आपको हेड को जितना डाउन कर सकते हैं, जिसमें आपका हैमस्ट्रिंग मसल वर्क करेगा, आपका लोअर बैक मसल स्ट्रेच करेंगे। ये था आपका हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच। ओके, इसका वेरिएशन भी है। तो एक लेग 45 डिग्री एंगल करेंगे, नेक्स्ट लेग इसको फोल्ड करेंगे आप, फिर इसको दोनों हाथ से ग्रिप करके, ये हो गया सेकेंड लेग। देन आप लाई डाउन हो गया उसको से वन लेग आप इसे ग्रिप करो, इसको मैक्सिमम स्ट्रेच करो, इससे आपको क्या होगा, ग्लूट्स मसल स्ट्रेच होगा, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होगा। मैक्सिमम ट्राई करो। सेकेंड लेग, देन इसको बोथ लेग करेंगे। इसके बाद वन लेग आप फोल्ड करेंगे, वन लेग आप रखो, फोल्ड करो ऐसे, चेंज करो। अब नेक्स्ट अब टर्न ओवर हो जाओ,
आप धनुरासन कर सकते हो, ये आप किया होगा आपको बचपन में। आप बॉडी के पास हाथ रखो ऐसे, आस्ते आस्ते बॉडी को ऑफ करो और साइड स्ट्रेच कर सकते हो ऐसे टर्न करके। आस्ते आस्ते ग्लूट्स को ऑफ करो। बेसिक एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग के लिए और भी कर सकते हो। आपका शोल्डर स्ट्रेच करो, आपका ट्राइसेप स्ट्रेच करो, इससे आपका बाइसेप स्ट्रेच होगा। बाइसेप हाथ रखो, देन इसको एल्बो पकड़ के स्ट्रेच करो। इससे क्या होगा, आपका बैक मसल स्ट्रेच होगा। देन आप फोरम मसल स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसे। तो आज का था ये सेशन। तो ये सेशन में क्या क्या हुआ आपका, फर्स्ट आपका वार्म अप, फिटनेस इंट्रोडक्शन हुआ हम लोगों का, लोअर बॉडी ट्रेनिंग, अपर बॉडी ट्रेनिंग, कोर ट्रेनिंग, आपको उसके बाद कूल डाउन किया आप लोग, देन ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो ये एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो, एट होम, कोई भी एक जगह फ्लोर में, इधर टेरेस पे, इधर घर के अंदर या आपको गार्डन में, तो एक्सरसाइज कर सकते हो। ये आप ओनली हाफ एन आवर लगता है ये ट्रेनिंग करने के लिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिटनेस। तो ये आप एवरीडे ट्राई करो, इधर एवरीडे नहीं होता, ऑल्टरनेट करो, बट फिटनेस करो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोगों का स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी कॉलेज खुला नहीं, तो कॉलेज के बाद जब कॉलेज आपको ओपन हो जाएगा, प्लीज हम लोग का जिम विजिट करो। आप लोग देखिए सब, everybody has seen the exercise demonstrations. So if you have any questions, we have a 5 minutes time line right now. So आप लोगों को कुछ पूछना है तो you can start your microphone, you can ask us regarding your if any daily lifestyle questions you have. Hello, sir. Hello. Hello. Sir, I wanted to ask that all these exercises जो आपने दिखाया, क्या हम जॉगिंग के बाद भी कर सकते हैं सारे एक्सरसाइज? एग्जैक्टली, या फिर आप running जॉगिंग के के बाद कर सकते हो, आप वार्म अप भी जॉगिंग, आफ्टर जॉगिंग भी कर सकते हो, बिफोर जॉगिंग आप वार्म अप भी कर सकते हो। तो वार्म अप ऐसा एक्सरसाइज है, तो आफ्टर बिफोर कर सकते हो, बट जॉगिंग के बाद आप एक्सरसाइज करेंगे आप। हाँ सर, जॉगिंग के पहले वार्म अप और उसके बाद कोर एक्सरसाइजेस, कूल डाउन। ओके सर, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Any fitness challenges, anything that you are facing on a day-to-day basis, any health ailments, anything, any health challenges? Okay, so fine. We hope that it has been quite an informative session for all of you. For the basic, whatever the module for exercise we have done right now. And for any details, we are always there. You can note down this number, 98300 15203. I repeat once more, 98300 15203. For our membership inquiries and gym related inquiries. So you can call up anytime from 6:30 to 9, and we can guide you regarding any other advanced programs or anything like that. Okay, regarding our memberships and all, or any activities, of course. Okay, so we wish you all a very good future ahead with iLead, and of course we are always there to guide you up. Please join up, and let's hope to make a better, fit future ahead. Fit future, everybody. Okay, thank you for watching. Thank you for watching our video. Please visit करो आप लोग सब। Sir, आपका कॉलेज आपको खुल जाएगा। Sir. Yeah, yes. Tell me. Sir, I want to increase my height. So what I can do for that? इसका जो हाइट का जो रिक्वायरमेंट है, ये मेरे जिम में भी बहुत सारा मेंबर्स आता है कि सबको आके बोलता है कि सर मुझे हाइट बढ़ाना है, या किसी को बोलता है मुझे हाइट एकदम नहीं बढ़ रहा है। तो पहला ये क्वेश्चन आता है कि आपका जो फैमिली है, जो फैमिली का हाइट आपसे क्या कम है या ज्यादा है? सेम है। सॉरी, आपका जैसे आपका मम्मी पापा जो है, तो उसका हाइट क्या आपसे ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। आपसे ज्यादा है? हाँ। तो आपका हाँ, मुझे एज अभी 19 तो आपके पास अभी भी टाइम है। तो आपका मम्मी पापा जब हाइट है, तो आपका वो हाइट तक आप नहीं, मेरे हाइट है 4.6 ओनली, मेरे 4.6 एज का हिसाब से। अच्छा, आपका एज के हिसाब से,
ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हो। तो कुछ कुछ एक्सरसाइज होता है जो मसल्स को स्ट्रेच करता है, तो स्ट्रेच करने से थोड़ा बहुत हेल्प होता है। लेकिन जो आपका जेनेटिकली जो हाइट होता है आपका फैमिली का, तो वो हाइट आपका अचीव कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा हाइट अचीव नहीं होता है। तो आप कुछ एक्सरसाइज करने से, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन करने से, तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि आपका न्यूट्रिशन, आपका एक्सरसाइज, आप न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छे से रखेंगे, आपका एक्सरसाइज प्रॉपर डेली अवर्स रखेंगे, तो आपका हाइट इंक्रीज हो सकता है। अदरवाइज नो ऑप्शन। तो ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास। तो आप ये ट्राई करो कि आपका न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा करो, एंड आपका एक्सरसाइज आप ज्वाइन करो या कहीं भी जगह, या आप खुद करो, तो इससे आपको बेटर हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। आप जिम जिम ज्वाइन करेंगे तो हम लोगों, तो हम कुछ एक्सरसाइज आपको सामने सामने दिखाएंगे, तो वो आपको कुछ हेल्प कर सकता है। ओके सर, Sir, थैंक यू can सर। you please tell once more the details about membership and the fees required? हाँ, membership you can come down anytime. It's right now on also. So आप आके आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये जिम है किधर पे, मतलब एड्रेस वगैरह? आप लोगों का सेकंड कैंपस पे है, आईलीड का सेकंड कैंपस। अच्छा स्किल बिल्डिंग जो है, सर। स्किल बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे है जिम। ओके सर, ओके ठीक है, आपके एकदम मेन आईलीड कॉलेज से 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। ओके सर। ओके देन, सो सी यू ऑल। ओके, चलो, enjoy your day. Bye. Bye, see you. Bye sir. Off the session right now. Bye, sir. Love Bye the sir. Bye. Thank you. Thank you. Bye bye.